Lambert law. This law gives the relation between intensity of a radiation absorbed and the thickness of the medium. मैंने आपको पहले बताया था when intensity of incident light is passes through any substance, a transparent medium or homogeneous system, इसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, रिमेनिंग पार्ट ट्रांसमिट होता है. So the Lambert law gives the relation between the intensity of a light absorbed and the thickness of the medium. This law states that when intensity of an incident light is passes through any substance, the decrease in rate of intensity of incident light is directly proportional to intensity of incident light. Now, जब भी यहां से कोई इंसिडेंट रेडिएशन किसी सब्सटेंस या ट्रांसपेरेंट मीडियम से या होमोजीनियस मीडियम से पास होता है, जैसे जैसे ये पास होगा वैसे वैसे लाइट रेडिएशन मीडियम के द्वारा एब्जॉर्ब होगी, और जब वो एब्जॉर्ब होगी तो नेचुरली उसका इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. सो द इंटेंस सपोज DI is the small part of a incident light that is absorbed by the small portion of the medium dx. Then DI by dx is called as rate of intensity of a light. And this minus sign, minus DI by ds, here minus sign represent the decrease in intensity of a incident light. So minus di by dx is the rate of intensity, and this equation is the Lambert law. The Lambert law states that decrease in intensity of a incident light with thickness is directly proportional to intensity of a incident light. Clear it? Rate of a decrease in intensity of a light radiation with thickness is directly proportional to intensity of a incident light. Now, to remove proportion sign, we use here constant K. This constant K is called as absorption coefficient or absorption constant. Here I is intensity of a incident light, X is the thickness of medium. Now, देन रीअरेंज इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 को हम रीअरेंज करेंगे क्योंकि हम स्मॉल स्मॉल पोर्शन में अलग अलग टाइम पर क्या करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट गेट अब्सॉर्ब, कितनी लाइट अब्सॉर्ब हुई है, कितनी कितनी डिस्टेंस पर, इसको हम अलग अलग टाइम पर मेजर करते हैं. तो उसका हमको समेशन करना पड़ता है, इसलिए हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. और इंटीग्रेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा. इसमें मैं I को इधर लेके आई हूं और dx को इधर ले आई. माइनस डी आई बाय आई इज इक्वल टू के एक्स, इक्वेशन नंबर 2. नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 बिटवीन लिमिट्स I is equal to I0 and I is equal to I upper limit. X is equal to x0 and x is equal to x. So now इसका इंटीग्रेशन करेंगे हमने साइंस लगा दिए हैं, हमने माइनस इंटीग्रेशन बिटवीन I0 I di by I is equal to k, x का इंटीग्रेशन x is equal to 0 और x is equal to x के बीच में करेंगे. So we'll get this equation minus log of limits I0 I k ये. Now तो इसका इंटीग्रेशन करने पर आएगा माइनस लॉग ऑफ I माइनस लॉग ऑफ I0 is equal to k x minus x0. So इसका हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस लॉग I प्लस लॉग I0 is equal to kx. और log of, we can write log of a upon b
इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस बी. सो ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, log of I0 upon I is equal to kx. और you can directly write this equation also. आपको ये इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बुक में ये नहीं दिया हुआ है, तो आप इंटीग्रेशन का डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं log of I0 upon I is equal to kx. Now then we can write this equation. We know that log of m is equal to x. We can write m is equal to exponential raised to power x, e raised to power x. तो यही हमने फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया है, हमने लॉग हटा दिया है. सो I0 अपॉन I इज इक्वल टू e रेस्ट टू पावर kx. फिर मैंने इसको इन्वर्ट कर दिया है, I0 अपॉन I की जगह I अपॉन I0, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, e रेस्ट टू माइनस kx. और दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज I इज इक्वल टू I0, इधर लेके गई हूं मैं, e रेस्ट टू माइनस kx. इक्वेशन नंबर 4. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज Lambert law, and this equation gives the relation between intensity of a incident light and the light absorbed. Now equation 3 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, log to the base e को हमने log to the base 10 में कन्वर्ट करेंगे. सो नाउ तो ये इक्वेशन लिखी जा सकती है 2.303 log of I0 अपॉन I इज इक्वल टू kx. अभी k 2.303 को मैं इधर लेके आऊंगी, I अपॉन I0 अपॉन I इज इक्वल टू k अपॉन 2.303x. मैं लॉग भूल गई यहाँ लिखना. Now log of I0 upon I is equal to k upon 2.303x. k upon 2.303 is equal to, मैंने लिखा है epsilon, that is another constant. It is called as extinction coefficient. So this equation become log of I0 upon I is equal to epsilon x. और this equation again हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, लॉग हटा देंगे. तो यहाँ पर मैंने log टू द बेस 10 लिखा हुआ है, log टू द बेस 10 है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है 10 I0 अपॉन I इज इक्वल टू 10 रेस्ट टू पावर x. आप ऐसा भी लिख सकते हो, अगर log टू द बेस 10 नहीं है तो log I0 अपॉन I इज इक्वल टू e रेस्ट टू पावर x. ना और वी कैन राइट, हमने फिर से उल्टा किया इसको, I अपॉन I0 इज इक्वल टू 10 रेस्ट टू पावर माइनस ex. और दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज I अपॉन I0 इज इक्वल टू e रेस्ट टू माइनस ex, अगर हम log टू द बेस e यूज करते हैं. और दिस इज ऑल्सो रिटर्न एज I0 को मैं यहां लेके गई हूं, I इज इक्वल टू I0 10 रेस्ट टू पावर माइनस e इप्सिलॉन x, और I इज इक्वल टू I0 e raised to minus ex. So this equation, Lambert law, gives the relation between intensity of an incident light and the thickness of the medium. Now this equation shows that, यहाँ ये equation बता रहा है कि I और Ix नेगेटिव साइन है. अगर इंटेंसिटी मीन्स जैसे जैसे इंसिडेंट लाइट इस सॉल्यूशन से पास होगी वैसे वैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन, इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट डिक्रीजेस एज द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस. इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट इंक्रीजेस इफ द कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस.